as you mentioned in your earlier session, that we have to, give some rewards to the children, and we have to appreciate them. Maybe you can, as you mentioned, that we can give them points for the good things. And I want to tell here on this platform that Bhumi is reading the book of the story, and she is reading almost 2 to 3 stories in a day. Every day she gets 1 point, and today she scored 10 points. Yesterday, sorry, and now she is eligible for the wine ice cream. So maybe once lockdown is over, I'm going to give her the first ice cream she has earned with really hard work. Different. So thank you so much, ma'am. It's because of your efforts. Very good. I don't know about you, but I certainly did face a lot of problems when I was a young parent. And now when I look back, I really think that I wish somebody was there to guide me. Now today we continue with the session that we took last time, which was on. The last session was how to make your kids listen to you, but without using harsh words, without like making them disappointed, like not too much of shouting and all. We should be polite to them. Yes. We should actually we should give them some kind of rewards, and we should try to make them, convince them in a soothing way. Okay. The basic thing was I liked about the children, that the children have that kind of thinking that when the mama is going to shout at you, at that time you have to listen. Yes. So that should be stopped actually. Yes. True. Thank you so much, ma'am. Yeah. So last time, we talked about children being the psychology of disobedience and how children, think. So this is majorly what we discussed was that. And now, children are not the same at all age groups. There are different age groups in which they think differently, and you have to deal with them differently. So today what we'll do is how to get them to obey and what is it that needs to be done. So now we'll divide these children into a few age groups. Now when a child is say 2 to 3 year old, that we discussed last time, and I told you, I said the child is not used to obeying because from the emperor of the house, he has now come to the secondary level where he knows the queen is somebody else. So he needs to know that. So 2 या 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, that's the first time उसको शौक लगता है कि ओहो मुझे तो ओबे करना पड़ेगा, मुझे तो मतलब किसी की सुननी पड़ेगी, सब मेरी नहीं सुनेंगे. So that is where it really starts. और उसके जो डीलिंग विद 2-3 year old चाइल्ड है, जो डीलिंग विद 8-10 year old चाइल्ड है, बिल्कुल डिफरेंट है. Now actually the seed is sown then. So parenting के लिए that is very important. जब बच्चा 1-1.5 साल का या 2 साल का होता है, जब he is getting used to obedience, तब वो जो टाइम है वो पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अ ट्रेनिंग पीरियड. वहां जहां आपने जैसे ट्रेन कर लिया, उसका आगे आपको उतना ही इजी रहेगा. सो जिन मदर्स के अभी बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो उस टाइम पे बच्चे को ट्रेन करें ओबीडियंस के लिए. नाउ जब वो स्कूल जाता है तो क्या होता है, स्कूल जाता है एक नेचुरल, उसमें ओबीडियंस की आदत पड़ती है, बिकॉज यू सी वो इतने 30-40 बच्चे उसकी क्लास में हैं और स्कूल में शायद 400-500 ज्यादा बच्चे हैं, तो वो हर एक जगह देखते हैं हर एक ओबे कर रहा है. व्हेन द टीचर से स्टैंड अप, सबको खड़ा होना पड़ता है. ही कैन नॉट से नो, घर में चाहे वो नो बोले, लेकिन स्कूल में नहीं बोल सकता है. सो जब वो स्कूल में आता है बच्चा, तो एकदम उसे लगता है कि दिस इज एक्चुअली द डन थिंग इन लाइफ, और वो टीचर को ऐसे देखता है कि क्योंकि उसको ओबे करना ही पड़ता है और सब कर रहे हैं, तो दैट मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कम्स कि ये जो चीज है, ये जो अथॉरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी सब मानते हैं. नाउ यू सी साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. नाउ व्हेन ही कम्स टू स्कूल, एक्चुअली प्रिंसिपल उसे कभी कुछ नहीं कहती है. मतलब I as a principal, I've never sort of scolded a child, never gone and been harsh to a child. लेकिन जो ऑरा है बच्चे का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल मैडम के पास अगर ले जाएंगे तो वो डर जाता है, बिकॉज दैट इज अल्टीमेट अथॉरिटी. ये उससे कोई बताता नहीं है,
लेकिन वो धीरे धीरे कैसे सेंस करता है, बिकॉज टीचर्स उसे धीरे धीरे सेंस करवाते हैं. वेन एवर द प्रिंसिपल वॉज ऑन अराउंड, टीचर्स थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं, टीचर्स आर बिकम कॉन्शियस. ना बच्चे को देखो साइकोलॉजी कितनी अच्छी होती है बच्चे की, वो जानता है कि ये जो टीचर है ये इनके ऊपर है कुछ, बिकॉज हमारी जिसको मैं अथॉरिटी समझता हूँ वो किसी और को अथॉरिटी समझती है. सो इसलिए वो जो फियर या रिस्पेक्ट या जो भी आप कहें वो प्रिंसिपल के लिए अपने आप ही ज्यादा हो जाता है. नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट एज पेरेंट्स, बच्चे ने क्या एनालाइज किया है कि अथॉरिटी ऑफ टीचर इज मोर बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू लिसन टू हर. अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज ग्रेटर बिकॉज द टीचर ऑल्सो लिसन्स टू हर. सो ही इज इन हिज माइंड मेजरिंग कि किसकी अथॉरिटी कितनी है. नाउ मोमेंट यू ही कम्स होम एंड यू ऑल्सो से कि होमवर्क कर लो, नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगी, नहीं तो okay, I'll ring up your teacher and I'll tell her that you don't do your homework. What you are doing is that I have no authority. Actually, teacher की authority है. So every time he'll not listen to you. He will wait कि teacher बोलेगी. That is why a lot of parents say, मैम आप homework दिया करो, क्योंकि आप नहीं देते हैं तो ये करते ही नहीं है. Now what is the psychology behind it? उसको आप important ही नहीं लगते, आपने बोला काम करो, not important. You have not gained that authority with the child. The child is only scared कि teacher ने बोला है इसलिए करना है. I will again give you a little personal example. I was my daughter used to go to this school where I was also a teacher, but I was in a different level. So जब ये नर्सरी में गई तो इसके क्लास टीचर ने मुझे बोला एक दिन, she was a friend of mine, she says she is the only child in class नर्सरी में. When I tell her कि बी ऐसे लिखना है तो everybody will go home, चाहे मैं गलत लिखूं या ठीक लिखूं, पर टीचर ने ऐसे बोला है तो ऐसे ही लिखना है. This girl is the only child in class who will come and rub it. No, my mother has told me B is like this. So she would not, go past that authority. In a way, I felt good. Also, frankly, I felt very good because, children, she knew कि, she had some faith कि जो मेरी mother बोल रही है वो ultimately ठीक है. So, I don't know, maybe something I was doing right, just say I gained that kind of authority. But this is generally not true. 99.9% children, they will, अगर teacher mispronounce कर रही है एक word को, no matter how much you tell them, they will mispronounce that word. Like this friend's child, वो आके honest ही बोलता था, तो mother ने इतना बताया कि H silent होता है, honest होता है. No, my teacher says honest, so it is honest. So that is the ultimate. Now the mother could not tell him your teacher's wrong. So ultimately, as he grew up, he learned, but till that time, not willing to listen to the mother, to anybody else but the teacher. So this is where, where parents, I think, go wrong at times. When they, and also teachers are here, I keep telling them, don't give them this, this threat. If you don't do well, मैं Susan ma'am के पास ले जाऊंगी या मैं Rana ma'am के पास ले जाऊंगी, because then the student will never listen to you. He will know that actual authority is either Susan ma'am, वहाँ discipline होगा, या ultimate कुछ कर दिया तो Rana ma'am. So this level is not for me. So for parents, this is very important, and this is, I think, one takeaway you should take, because most of the times parents do this. So this should not be done. Now, as the child grows, he gets used to school authority, and if parents are doing everything right, so dhire dhire he starts probably listening to the parents also. That then, he does that because he's too young to form his own opinions. So by and large, he will do that. Now, as he grows older and he comes to the level of 8 years to 11 years, he gets smarter. ना उससे समझ में आने लगती है कि when to obey, when not to obey, कितना मैं leeway ले सकता हूँ, कहाँ तक मैं इसको stretch कर सकता हूँ. So this is where what we had discussed last time, all those things come into play. Now 8 to 11 years he's still manageable, because you can sort of manage him, किसी ना किसी तरह कोई अपना जो आपको बताए गए हैं इनमें से कोई method use करें.
प्रॉब्लम रियली अराइजेस आफ्टर 11, जब वो 12 और 18 के बीच में बच्चे होते हैं. Now that is the real problem, because actually they say teens, but हम अब आजकल तो बच्चे 11-12 में भी teens वाला exposure ज़्यादा है, so actually it doesn't even come to the teens. By 11-12 ये problem शुरू हो जाती है and basically 18 तक रहती हैं. So these years of disciplining or getting the child to obey are most difficult, because एक तो उसमें इतना confidence आ जाता है कि मुझे सब पता है, मेरे पेरेंट्स पुराने जमाने के हैं, वो तो समझ ही नहीं सकेंगे कि व्हाट वी गो थ्रू, दे डोंट नो ना. इसके लिए ना, टू गेट चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट यू एंड ओबे यू एट दैट एज, यू हैव टू कीप अप विद द चिल्ड्रन. ना, पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बी श्योर दैट यू कीप अप विद द चिल्ड्रन. अगर उनको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आप सीखिए. उनको अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, डजंट मैटर, आप उनके साथ सीखिए, उनके साथ उस लेवल पे करिए, ताकि आपको कभी वो ये नहीं कह सके कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको आता नहीं है. सो दोज आर द थिंग्स वी हैव टू ग्रो विद आवर चिल्ड्रन. वी कैन नॉट रिमेन बिहाइंड. दैट इज वेयर दे विल कंसिडर अस देयर लेवल. सेकेंडली, प्योर प्रेशर बहुत होता है. अब आपस में जो बच्चे हैं, अरे हमेशा ही मम्मी का कहना मानता है, मम्मी से पूछूंगी, मम्मी से पूछूंगा, और वो नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा, उसको उसके फ्रेंड सर्कल में सिसी टाइप कंसिडर किया जाता है. क्यों? बहुत कहने वाले होंगे कि अरे मम्मी का हम तो हर एक चीज क्यों. सो बहुत ऐसे बच्चों के फ्रेंड्स होंगे जो उनको देखेंगे कि अरे हमारे ग्रुप में नहीं आने का, बिकॉज ये तो कभी रिबेल करेगा ही नहीं. अगर हमने कोई अच्छा प्रोग्राम एक्साइटिंग बनाया तो ये तो मम्मी को बताएगा, और फिर इसकी मम्मी मेरी मम्मी को बताएंगी. सो यू नो द पीयर प्रेशर्स देयर. तो इसलिए भी जो चाहते भी हैं बच्चे, वो भी नहीं कर पाते. देन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे बिकम मोर. अभी तक कॉन्फ्लिक्ट एरियाज क्या थे? आपने रूम क्यों नहीं साफ किया, आप जल्दी क्यों नहीं उठे, आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, होमवर्क ठीक टाइम पे कर लो, सुनो, those little things. अभी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकम मच लार्जर. एक तो सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट, कि मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं. उसके बाद सोशल मीडिया इतना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो छोड़ते नहीं है. सो दीज एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वी विल टेक अप डिजिटल एडिक्शन इन अ सेपरेट सेशन. सो वो इतना बड़ा अभी प्रॉब्लम है दैट इट नीड्स अ फुल सेशन, मे बी 2. Now this area of conflict बढ़ जाएगा. Secondly, area of conflict becomes a sexual conflict. अभी उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है. हमारे जो आइडियाज, जिस तरह से हम ब्रॉट अप थे, वो हमारे मन में इतने सीमेंटेड हैं कि हम उनमें से निकल नहीं पा रहे हैं. हम देख नहीं पा रहे हैं कि सोसाइटी कितनी चेंज हो गई है. Now this area of conflict comes, एंड धीरे धीरे द चाइल्ड फील्स कि ये मेरी मदर तो मेरी बिल्कुल स्टैंडर्ड की नहीं है, समझती नहीं है कुछ. मतलब जो इतना चेंज सोसाइटी में है, वो देखते हैं कि पीयर ग्रुप कितना चेंज हो गया है, फिल्म्स में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, एंड इन दे फील कि मतलब कौन से जमाने की बात कर रहे हैं. सो अगेन दैट एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ह्यूज. देन वी हैव आवर ओल्डर पीपल स्टेइंग विद अस. अगर हम चाहें भी, अगर मैं चाहूं कि मेरी टीनेज डॉटर जो है, डजंट मैटर, सो व्हाट, मिनी स्कर्ट पहन सकती है, सो व्हाट, ऑफ शोल्डर पहन सकती है, पूरी दुनिया पहन रही है. लेकिन इफ आई हैव अ मदर इन लॉ, मदर टेलिंग मी नहीं ना, मुझे आई एम इन कॉन्फ्लिक्ट कि उनको प्लीज करूं कि इसका देखूं. सो नेचुरली घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना. गोइंग आउट लेट एट नाइट, हैविंग फ्रेंड्स, ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स, एंड वी thinking कि नहीं, they are beyond friends. So those kind of conflicts will arise. उससे obedience कम होगी. कितनी freedom देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए. So this is another area of conflict. Because अब इस time में बच्चे ना तो adult हैं, ना बच्चे हैं. So वो समझते हैं. Then also what we tell them is, कभी हम बोलेंगे आप बच्चे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते. कभी हम बोलेंगे आप इतने बड़े हो गए, आप इतना भी नहीं समझते. Now the child thinks कि मैं बड़ा हूं कि मैं बच्चा हूं. Then हमारे रोल्स बड़े चेंज हो जाए. We want कि बच्चा हमें कन्फाइड करे,
We want कि सारे secrets मेरी daughter आके मुझे बताए. So we tell the child कि listen, I'm a friend of yours. Now tell me. Now when I become a friend, then am I doing the right thing in being authority? Then the child starts treating me as a friend. Now again, I'll give you a personal example. My daughter was in the 8th, 9th, so, and she's the only child. अब मुझे भी actually कोई company और नहीं थी, और for me she was like, you know, in my mind she was like a sister to me, because मुझे भी उसको था कि we are playmates. और she used to confide a lot also, so हम एक दूसरे के secrets भी share करते थे. Now every time I used to tell her, बताना, I'm your friend, I will not tell. And actually I never used to tell her secrets. वो सब हमारे में relationship, friendship वाला हो गया. Now friendship वाला हो गया, तो एक दिन कुछ हुआ and she spoke very rudely to me. She said, चलो भी, छोड़ो भी, you know, things that you do not say to a mother. कि, you know, get off, go out, or something like that, she said. And I felt very hurt. I said, you talk to your mother like that? And I was so hurt. मैं दूसरे कमरे में चली गई and I closed my door. थोड़ी देर तक she was angry, I was angry. And then she knocked at my door and she came and she sat beside me. She said, Mama, please decide. What do you want to be? You want to be my mother or you want to be my friend? Zara clear kar do. So I said, well, I'm your friend, whereas all this is concerned, but you have to maintain that respect. She says, when you are my friend, I treat you like my friend. I do not say politely, you know, listen, Rohini, will you just go away from here? I said, get out. So I'm treating you like that. So please do not confuse me. Now, openly उसने मेरे से ऐसे discussion करी, तो मैंने भी सोचा actually बात तो ठीक है. I should, you know, she says, I don't know when you want to be my friend and when you want to be my mother. So you must make it clear to me. So that day I thought कि क्या करना चाहिए. Now you see, I had reached a stage, it was too late for me to be a mother. Because मैं इतनी ज़्यादा उसकी friend हो गई थी कि मैं वो भी नहीं lose करना चाहती थी. मैं अपनी authority भी नहीं lose करना चाहती थी. So as a result, we had very difficult 2 to 3 years. It wasn't easy at all. क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि actually मैंने उसको बोल तो दिया कि okay, we'll be friends. But in my mind, जहाँ पे मेरी authority चलनी होती थी, वहाँ पे मैं चाहती थी कि वो मेरी माने. So that is why I say there was nobody to guide. So हम दोनों ने अपने गिरते पड़ते और अपना relationship जो है कैसे कुछ खराब किया, कुछ संभाला. But now when I think back, I wish somebody had given me this knowledge. कि I have to maintain that one relationship, I cannot maintain two. So this is again something that, you know, we must do with our children for them to respect us or obey us. There is nothing wrong in being a friend, but do not expect कि वो आपको फिर वो आपको कहने में, do not feel hurt like I did. अगर वो friendly होते हैं तो accept that friendship and उसी उसमें उनको treat करो. Can you do that? You cannot do both roles. Now what happens is after about 18 years, बच्चों में अपने आप ही थोड़ी maturity आ जाती है. कुछ वो अपने friends से, अपने environment से इतना सीख लेते हैं that gradually after that things only get better. That is why I always, you know, advise the parents कि आप 10th के बाद बच्चों को अगर वो आपसे दूर कभी नहीं रहे हैं तो 10th के बाद मत भेजिए, because those 2 crucial years are very, very important in building this relationship. Either you send them earlier, they get responsible earlier, or you send them after they are 18 when they are matured enough to deal with their lives. Also now after they turn 18 problem कहाँ आता है? After they turn 18 parents में problem आता है, because अभी तक वो सारे obedience सिखा रहे थे बच्चे को, और बच्चा जो obedience सीख भी रहा था वो अपने लाइन पे आना भी शुरू हो गया था. Now at 18 he is matured. Parents do not know how to let go. They do not know कि अभी बच्चा हमारा बच्चा नहीं रहा है, उसके अपना मन है, उसके अपने opinions हैं, उसके अपने ideas हैं, and we have to let go. That is why you see sometimes parents at 60, 70, 80 also do not let go. आप देखेंगे अपने घरों में आपके husbands या आप
कई बार आप मानते हैं कि वो चीज हमारे बिल्कुल ठीक नहीं है, बट पेरेंट्स को खुश रखने के लिए आप करते ना, यू बिकम मेच्योर्ड कि चलो हम ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, नहीं समझ रहे हैं। बट एक्चुअली किसको मेच्योर्ड होना चाहिए? पेरेंट्स को मेच्योर्ड होना चाहिए कि अभी बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हम उनकी लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें, वो अपने आप सोचें कि उनको कौन सी राह चलनी है। ना यू सी, इवन इफ यू उनके मन रखने के लिए अगर आप बात मान भी लेते हो, पर कहीं ना कहीं आपको चुभता है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, कब हम डिसीजंस लेंगे, कब हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। और फिर आपका कॉन्फिडेंस एज अ पेरेंट होता है कि हम तो अभी तक बड़े नहीं हुए, हम बच्चों से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। सो आप उनको भी ओबीडियंस के में जकड़ लेते हो कि जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तक वो मान रहे हैं जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं। So this is a whole cycle of life that affects households, and this is why we have to see to it कि कहाँ हम बैलेंस बना के रखें, कितनी ओबीडियंस एक्सपेक्ट करें और कैसे उसको एक्सपेक्ट करें। Now, when a child is very young, sometimes he does not obey. It's just simple. वो 2-3 साल का बच्चा है, उसने सुना ही नहीं है, वो इतना अपने खेल में मस्त है, उसने आपकी बात ही नहीं सुनी है। आप सोचते हो कि वो कहना नहीं मानता। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट ही इज टू बिजी एंड ही डजंट रियलाइज कि वो सुन के भी मुझे करना है, तो उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, या वो जो भी काम कर रहा है इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको मन ही नहीं है वो करने को, या उसको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली आप बोल क्या रहे हो। आप उसको एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द कमांड, तो वो इसलिए नहीं ओबे करता है। और कई बच्चे जो होते हैं, दे जस्ट वांट टू असर्ट देयर विल कि मैंने जो कहा वही होना चाहिए। ना, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली ऐसे होते हैं, वो उन 2-3 साल में ही ऐसे बन गए होते हैं, क्योंकि समवेयर आइदर यू या आपके हस्बैंड या आपके जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं, वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो बच्चा कहेगा वही मानना है, तो वो यूज्ड टू हो जाता है कि मेरी ही चलेगी। Sometimes a child is just tired, तो वो आपकी बात नहीं सुन, आपको लगता है मेरी बात नहीं सुन रहा है, but actually he is just tired, and mostly he does not know the rules. So इतने demarcated, उससे पता ही नहीं है कि actually क्या करना है, क्योंकि कभी आप कुछ बोल देते हो, कभी आप कुछ बोल देते हो, कभी कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो, कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो he is just confused, and sometimes he doesn't obey because he just wants कि आप बार बार कहें, और वो बार बार जब कहेंगे तो उससे उतनी अटेंशन मिलेगी, and he just needs some more connection with you. So that now when he becomes 3 to 8 years, when he starts going to school, then he is not obeying. Now why is he not obeying then? Because एक तो बहुत बड़ा रीजन है conflicting parent, जहाँ पे माँ और बाप जो हैं वो आपस में ही उनका कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही वो एक चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। सो दैट इज व्हाई ही डेवलप्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन पेरेंट। समटाइम्स इट्स सो ओवरलोड ऑफ लव, इतना प्यार करते हैं कि उससे कुछ लगता ही नहीं है कि ये कमांड दे रहे हैं या कोई कुछ कहना चाह रहा है, उसको उसी में ही लाड में ही उसको लगता है कि देयर इज नो नीड टू ओबे। Sometimes you are giving him a command, but उसको समझ में नहीं आती है, because it's not in the shape of a command. You are telling him ऐसे कि ये कर लो, तो उसको लगता है ये तो मतलब जैसे नॉर्मली बात हो रही है। उसको whenever you telling the child to do something, telling the child to obey, attention 1-to-1 होनी चाहिए. He must be looking into your eyes when you give him the command. You must, बाकी सब चीजें हटा के उसकी अटेंशन, आपकी अटेंशन बिल्कुल एक साथ होकर, ताकि अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट यू वांट। एंड द वॉइस हैज टू बी जेंटल, लो, काम। कोई भी बच्चा एजिटेटेड एटमॉस्फेयर में नहीं सुनेगा। सो अगर आप उसे बिठाकर उसको आराम से वॉइस लो, प्यार से उसे बताते हो, तभी वो रिसीव कर रहा है उससे कमांड। और जब वो रिसीव कर रहा है तो उसके बारे में एटलीस्ट सोच रहा है कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है बच्चे में जहां वो
बिल्कुल सुनता ही नहीं है और बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, प्लीज कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम. Now, attention deficiency syndrome is a psychological disease. It has nothing to do with the child not obeying. उसको हमेशा ही हाई लेवल अटेंशन चाहिए. अगर आपका बच्चा ऐसा है जो टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है, लेट जाता है, जिद करता है, इतनी तो थोड़ा बहुत जिद सब बच्चे करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा करता है जहां पे अनबेरेबल हो जाता है, प्लीज सी अ साइकोलॉजिस्ट. Next is a child will never, listen to nagging. Nagging is क्या बार बार उससे वही करते हैं. सुबह आपने पढ़ाई की, नहीं की, फिर आपने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद पढ़ाई करी, नहीं करी, फिर उसके बाद अभी तक पढ़ाई नहीं करी, बोला था पढ़ाई करोगे. Then वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती चली जाती है. First it was after 2 hours, then 1 hour, then half an hour, then 15 minutes. And you keep telling him पढ़ाई करो ना. उसके बाद आपने उसको एक कमांड दिया पढ़ाई करो, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोलने से अगर समझ में नहीं आ रहा है, थिंक कि उसे समझ में क्यों नहीं आया, उसने ओबे क्यों नहीं किया है ना. पढ़ाई करो इज अ वेरी जनरल कमांड, उससे असल में समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई करो मतलब अब मैं क्या करूं. दैट मीन्स द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि go and do your math homework, do chapter 8, start solving. If you don't know anything, call me. Now this is a specific command. अब आप उसको समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है. So there is no use giving the same command over and over again. फिर वो उसका दिमाग जो है वो ढीठ बन जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि तो बोलते ही रहते हैं, करेंगे. Also you have to do, you should do. आजकल ज्ञान तो कोई भी सुनना नहीं चाहता है. There's enough on the internet. So बच्चे भी नहीं सुनना चाहते हैं, सब फेड अप हैं कि बोलते ही जाते हैं ये करो ये नहीं करो. So if you use that language, तो उसका एक बैरियर पहले ही खड़ा हो जाता है. If you're using that language, तो पहले ही वो रिसेप्टिव नहीं है कि अच्छा ये तो बोलते ही रहते हैं, अच्छा ये तो यही बोलेंगे. उसको पहले से ही पता है कि अब आप ये बोलने वाले हो. So how to give that command? Give him choices. Everybody likes to believe कि decision मैंने किया, importance उसमें होती है. So okay, now you need to do this chapter now. Are you willing to do it now, or will you do it after 10 minutes? Now when you're giving him a choice, वो now by and large नहीं बोलेगा, because he will say after 10 minutes. अभी तो निकल जाए time. So now after 10 minutes he has made the choice. So you don't have to tell him क्यों नहीं किया. So just tell him now it's 8:10. 10 minutes are over. You only said after 10 minutes. I'm just reminding you. I'm not saying anything. Just reminding you कि 10 minutes हो गए हैं. That's all. So he'll feel ashamed कि मैंने ही तो बोला था अभी 10 minutes में करूंगा, अब भी मैं फंस गया, अब मैं कैसे करूं, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा. So by and large he will do it. Now if he still does not do it, leave it. Don't say anything. After 20 minutes tell them I gave you a choice, तुमने नहीं किया, अब तुमने नहीं किया तो क्या होगा. Don't say कि अच्छा अभी कर लो. Now when this 10 minutes choice happens, तभी उसे मालूम कोई रूल सेट होने चाहिए that when you don't obey होगा क्या. So initially your house rules are set that if you don't obey, you are making your choice. If you go back on your choice, you will not watch TV tonight. So now उसके बाद don't trouble him at all. Wait till TV time. When he comes to watch TV, say sorry, you did not obey. This is your consequence. अब टीवी तो नहीं होगा, तो इससे अच्छा मैं अभी कर लेता हूं. So कर लो. That is your choice. You want to do it now, your choice. Then he'll say अच्छा मैंने अब कर लिया होमवर्क, तब मैं टीवी देख सकता हूं. Now very natural question कि मैंने अब जल्दी कर लिया तो क्या मैं टीवी देखूंगा. Now is the time most parents will say yes. Now when you say yes कि अच्छा अभी आप काम, then he knows कि कभी भी मैं इस कमांड को डिले कर सकता हूं. तो इसलिए उसको बोलो नहीं, today तो no, because this is because you did not obey the command. Tomorrow onwards obey the command, then you can watch TV.
बट इट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. ये नहीं कि उस टाइम नहीं किया था ना. ओबीडियंस वो होता है जो उसी टाइम ओबे हो. आप उसके बाद ये नहीं कह सकते कि मैं 10 दिन बाद ओबे कर लिया मैंने, तुम्हें बहुत गुड हो गया, और पेरेंट्स ने बोला हाँ हाँ देखो मान तो गया. सो ground rules in every house must be set. Again, I'll tell you a very personal thing. हमारे घर में मैंने रूल बना रखा था कि फर्स्ट टाइम आपने कुछ भी करा, उस टाइम यू सी अभी बहुत डिफरेंट हो गया है. हमारे टाइम में थोड़ा मारना पीटना कुछ इतना बड़ी बात नहीं समझी जाती थी. सो देयर वाज अ पेन. उस पेन का फ्लैट था पीछे का. सो दैट पेन वाज ऑलवेज नियर माय बेड साइड टेबल. So I used to tell my daughter, I said कि देखो ऐसा है कि these are the things, आपने जिस दिन काम नहीं करा तो इसका 1 पनिशमेंट है, इसका 2 पनिशमेंट है, हाथ करोगे उसको पनिशमेंट मिलेगी. सो वो मिलती भी थी, हमेशा मिलती थी. सो धीरे धीरे उसको इतना माइंड सेट हो गया कि अभी मैंने नहीं किया तो नहीं किया. तो जिस दिन एक दिन मैं स्कूल से आई एंड बिफोर आई केम बैक फ्रॉम स्कूल शी शुड हैव कंप्लीटेड हर 1 सब्जेक्ट का होमवर्क. So when I came, नहीं किया हुआ था, तो this girl comes to me with the pen and her hand, says Mama 2. So she knew कि अभी ये 2 पढ़ेंगे इधर, तो this is my punishment. But this punishment does not mean कि होमवर्क नहीं करोगे. ये 2 करके अपना जाओ और होमवर्क करो. So अपना ही उसको मालूम था कि कितना है, उतने वो नंबर आके बता देती थी और हाथ आगे कर देती थी. So initially, I used to give a zero because it was honesty. So I used to tell her, okay, you've been honest. So धीरे धीरे कर. Then I realized ये तो गेम बन गया. उसने क्या शुरू किया कि काम करना ही नहीं, अरे 2 धीरे धीरे ऐसे होंगे. Then I said, no, this is not working. So then उसको जोर से थोड़े पढ़ने लगे. फिर उसको realize हुआ कि ये this trick has been caught. So that is how then things improved. Then she started doing in time. But it was very clear that if you don't do this, you will get this. So now, of course, don't take it into corporal punishment. It can be anything else. Denial हो सकती है, not talking to you हो सकती है, no affection हो सकती है, but for a small time. अब उसको carry forward नहीं करना है. Now, if you every day अगर आपका routine है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के गेम खेलते हैं, that is the biggest punishment you can give. Okay, if you don't do your work, this time is not ours.